Jai Hind everyone. My name is Ashish Kumar and I am assistant professor in computer science and engineering department, and the college is Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. In the series of operating system subject, today's lecture is on the topic page replacement algorithm. Let's start the session. So page replacement algorithm in an operating system that uses paging for memory management. A page replacement algorithm is needed to decide which page needs to be replaced when a new page comes in. Okay. So in an operating system, we have a limited memory called as a RAM. Okay. So in this RAM, we reside pages of a different processes. Like we have a process P1. That process divided into the pages, like page number 0 and the page number is 1. So these pages are mapped into the main memory in the form of frames. So basically these pages are mapped in the frames of a main memory, like this frame represented by the 1, 2, 3, 4. So inside this frame, page number 0 is mapped in this particular frame. Page number 1 is mapped in the frame of 2. Okay. So using the page replacement algorithm, it decides which page to remove, also called as swapped out, when a new page needs to be loaded into the main memory, right? That means when this main memory is full by the different pages, then we need to swap in, swap out methodology through which we can replace the pages from secondary memory to the main memory, or we can say that through the virtual memory. Okay. So virtual memory means where all the pages are reside of the different processes. So it happens when a requested page is not present in the main memory and the available space is not sufficient for allocation to the requested page. Okay, let's take an example. Suppose we have a CPU. So CPU called as a running state, right? And it demands the pages of process P1, like CPU को पेज नंबर 0 की नीड है. Okay, but as we can see here, this is the main memory, and here lots of different pages are occupied. As you can see here, CPU demands page number 0 of process P1, but in this main memory, this particular page is not found in this main memory of a particular frame, like 1, 2, 3, 4 and 5. So whenever CPU demands for a pages, if the page is not found in the main memory, that means page fault occur. यहां पर पेज फॉल्ट हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि मेन मेमोरी में जो सीपीयू डिमांड कर रहा था जिस पेज की, वो आपके मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड memory space, right? So through the page replacement algorithm, we can swap in. Here is the different, like pages are reside in the secondary memory, or called as a
virtual memory. It is a part of the secondary memory, right? So swipe in and swipe out. Through this strategy, we can replace the pages from main memory to the secondary memory or virtual memory, or through the virtual memory to the main memory. This is the concept of the page replacement algorithm. So in the page replacement algorithm, different types of algorithm we have to discuss. Like first one is the FIFO, that is first in first out. Next one is the LRU. It stands for least recent used. Okay. Then third one is the optimal page replacement algorithm. So these are the three kinds of page replacement algorithm through which we can replace the pages from the which page should be replaced so as the minimized total number of pages misses. There are many different page replacement algorithms as I can discuss with you. These algorithms are evaluated by running them on a particular string of memory references and computing the number of page fault. अभी मैंने आपको बताया कि पेज फॉल्ट क्या होता है कि जब पेज हमारा मेन मेमोरी अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं वहां पर आपका पेज फॉल्ट हो रहा है. The fewer is the page fault, the better is the algorithm for that situation. जितना ज्यादा हमारा पेज फॉल्ट कम होगा उतना ही ज्यादा वो एल्गोरिथम उस सिचुएशन में बेस्ट परफॉर्म करेगी. So here these three algorithms, first in first out, least recently used, optimal page replacement, right? We will discuss these algorithms through the questions. Okay, here is the main important points. That is, if a process requests for a page and that page is found in the main memory, then it is called page hit. If the page is found in the main memory, that means page hit, because CPU demands the pages and that page is already found in the main memory, so that we represent that term as a page hit, otherwise page miss or page fault. So here is the one example in which we have to represent the frames, like 4 frames. We have a 4 frames given, and these are the page reference string of size 12. So we have a 12 reference string like 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 1, 6, 3, 2, and last one is the 3. So through the first one algorithm called as a FIFO, we have to solve this question through the FIFO replacement algorithm. So let's start. So we have a 3 frames. Okay, 3 frames means we have a memory. As I already told you, memory, that is main memory, is divided into the frames. Okay, inside this frame, different pages of the different processes are resides in these frames. Okay, so in the question we have a given the frame size is 4, that is maximum 4 pages in a frame. Okay, so we have a frame, we have to represent. Just wait. So we firstly we have to represent the string like 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 1, 6,
3, 2, 3. So these are the total string of size is 12. Okay. Now we have a 4 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. One, 2, 3 and 4. So frame number 1, frame number 2, frame number 3, frame number 4. Okay. So this is the representation of main memory. As the question says that maximum 4 pages in a frame. Okay. So maximum 4 pages reside in the particular frame. So we have to find out how many number of page fault occur, or question also says that find out the how many hits are occur through of this particular reference strings. Okay, so let's start through the FIFO. As FIFO says that first in first out. So initially we have a empty memory, right? That means अभी हमारे पास जो मेन मेमोरी है, जो भी हमारे फ्रेम्स हैं वो एम्प्टी हैं. ओके, और दीज आर दी पेजेस 1 2 3 4, दीज आर दी पेजेस. ओके, दैट मीन्स जो सीपीयू है वो इन पेजेस की डिमांड कर रहा है. ओके, अगर ये पेजेस मेन मेमोरी में है दैट मीन्स कहीं ना कहीं पेज हिट होगा क्योंकि वो मेन मेमोरी में. अदरवाइज अगर पेजेस आपके मेन मेमोरी में नहीं है तो वो आपका पेज मिस हो जाएगा, राइट? तो इनिशियली हमारे पास कोई भी पेजेस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पेज मिस होगा. जैसे कि 1 आया तो यहां पर पेज मिस हुआ, तो पहला आपका एज अ 1 reside in this particular frame number 1. Then 2, here is the miss because page number 2 is not present in this main memory, right? So page miss. रिप्रेजेंटेशन आप कुछ भी कर सकते हैं, स्टार लिख सकते हैं या एम भी लिख सकते हैं. ओके, सो देन 1 2, जब मिस हुआ तो हमने 2 को लिया. देन यहां पर भी मिस हुआ, दैट मीन्स 3 आपका नहीं है तो 1 2 3 आ गया. देन फर्दर पेज नंबर 4, एज यू कैन सी हियर पेज नंबर 4 इज नॉट फाउंड इन दिस पर्टिकुलर मेन मेमोरी, राइट? दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहां पर आपका पेज मिस हुआ. जब मिस हुआ तो देन आप फर्दर इसको यहां पर लेके आए. ठीक है, अब यहां पर आप देखिए नेक्स्ट जो स्ट्रिंग आ रही है या जो नेक्स्ट पेज नंबर आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है 5, बट 5 इज नॉट प्रेजेंट हेयर, राइट? और ऑलरेडी मेरे पास जो फ्रेम जो मेन मेमोरी है जहां पर ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है मैक्सिमम 4 पेजेस इन अ फ्रेम, तो 4 पेजेस आपके रिसाइड्स हो गए हैं, राइट? अब यहां पर 5 पेज नंबर को लेके आना है बट ऑलरेडी हमारे पास ये 4 फ्रेम फिल्ड है. तो यहां पर टेक्निक कौन सी होती है? पेज रिप्लेसमेंट. ओके, सो पेज रिप्लेसमेंट में अब हमें कहीं ना कहीं इन पेजेस को रिप्लेस करना होगा, राइट? किसको करेंगे? थ्रू द फीफो. जो पहले आया हम उसको रिप्लेस करेंगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो एज यू कैन सी हियर सबसे पहले कौन आया था? अब मेरे पास गिवन कितने हैं? यहां से देखिए 1 2 3 4 यही पेजेस हैं, इन्हीं में से रिप्लेस करना होगा. तो किसको रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले हम कौन आया था, किसको लेके चले थे? 1 को. तो 1 पेज इज रिप्लेस्ड बाय द पेज नंबर दैट इज 5. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, 5 2 3 4.
तो यहां पर भी क्या हुआ था, मिस हुआ था। ओके, देन फर्दर कौन सी स्ट्रिंग आ रही है, 1, तो 1 इज नॉट प्रेजेंट हियर, देन फिर से मिस हुआ। अब किसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद कौन आया था, 2, तो हम 2 को रिप्लेस करके 1, तो यहां पर भी आपका मिस हुआ। ओके, देन next page is 3 and this page is already present in this particular frame, so यहां पर क्या हुआ, आपका फिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि पेज नंबर जो सीपीयू को चाहिए वो ऑलरेडी मेन मेमोरी में आपके प्रेजेंट है, तो यहां पर आपका क्या हुआ, हिट हुआ। तो हिट के केस में एज इट इज हमारी स्ट्रिंग जो यहां पर कॉपी, जो यहां पर प्रेजेंट थी, उसको एज इट इज हम एज अ मिरर इमेज कॉपी कर देते हैं। ओके, देन फर्दर 1 also present here, so hit, then 5 1 3 4, then further 6 is not present here। okay, अब किसको किसको रिप्लेस करेंगे, उसके बाद कौन आया था, 3, तो हम 3 से इसको रिप्लेस कर देंगे और 3 के जगह हम किसको लिख देंगे, 6, so यहां पर आपका फर्दर मिस हुआ। देन आया आपका 3, अब 3 आया है तो प्रेजेंट नहीं है, यहां पर हम किसको रिप्लेस करेंगे, 4 को, जो अगर इनके कंपैरिजन करेंगे आप तो देखेंगे जो 4 है वो बहुत पहले आया था, अब उसको हम रिप्लेस कर देंगे, तो 5 1 6 4 को रिप्लेस करके देन हम फर्दर 3, तो यहां पर भी आपका मिस हुआ। देन फर्दर 2 5 1 6 3, अब यहां पर 2 आ रहा है, ये देखिए 2 इज नॉट प्रेजेंट, किसको रिप्लेस करेंगे, अभी हमारे पास स्ट्रिंग कौन कौन सी है, 5 1 6 3, तो पहले कौन आया, इन चीजों में पहले कौन आया, कहीं ना कहीं हम 1 आया था, देखिए यहां पर देखिए 1 आया, तो 1 को हम रिप्लेस करके 2 5 2 6 3, तो यहां पर भी आपका मिस हुआ, और लास्ट आपका 3 है, तो 3 आपका हिट हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी आपका प्रेजेंट है। ओके, सो ये आपका सारी स्ट्रिंग्स हमने प्लेस कर दी है मेन मेमोरी में। Now we have to calculate how many number of page fault occur, or we can say how many page miss. Calculate the page miss, total number of page miss. So calculate कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So total number of page fault और मिस कितने हैं हमारे पास, 9। जब 9 आपके पेज फॉल्ट हुए तो टोटल नंबर ऑफ हिट कितने आएंगे, बताइए, टोटल नंबर ऑफ हिट कितने हो गए, जब 9 आपके मिस हुए तो कहीं ना कहीं आपके हिट कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि टोटल हमारे पास स्ट्रिंग का साइज कितना था, 12, और आप देख भी सकते हो, देखो 1 हिट के केस में 1 2 एंड 3। इज इट क्लियर? सो टोटल पेज फॉल्ट इज 9 एंड टोटल नंबर ऑफ हिट्स आर दी 3। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है आपसे कि फाइंड आउट द मिस रेशियो और हिट रेशियो। ओके, तो उसके केस में आपको कुछ नहीं, मिस रेशियो अगर आपको निकालना तो टोटल नंबर ऑफ आपके मिस कितने उतने डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग करके आप निकाल सकते हैं। सेम केस आपके हिट के केस में की। ओके, सो ये आपका था एज अ फीफो का केस। ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट केस है वो हमारा है आपका LRU। ठीक है, तो LRU को भी हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। तो हमारे पास गिवन स्ट्रिंग्स हैं लाइक 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0,
1, 7, 0, 1. So we have a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. So total string size given is 20. And through the LRU, that is least recent used algorithm, find out the total number of page fault in this particular reference string. ठीक है, लीस्ट रिसेंट यूज्ड. ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट करना है. कंसेप्ट हमारा वही रहेगा. एंड हेयर फ्रेम्स हमारे पास जो गिवेंस हैं, जो हमारे पास फ्रेम्स हैं, दैट इज 3. ओके, सो 3 फ्रेम्स आर गिवन. तो हम अपनी मेन मेमोरी को 3 फ्रेम्स में 3 गिवन है, 1, 2, 3, 4 वही कंसेप्ट लेके हैं. 4 है हमारे पास, 3 नहीं है, हम 4 लेके चल रहे हैं. फोर फ्रेम्स लेके चल रहे हैं. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Okay. 1, 2, 3, and 4. So here frame number 1, 2, 3, and 4. So least recent use, that means we have to replace that page which is least recent. ठीक है, तो इसमें हम इस तरफ डायरेक्शन में हम देखेंगे और पेजेस को रिप्लेस करेंगे. अभी आपको क्लियर हो जाएगा. सो हमारे पास सबसे पहले अप्रोच वही है, जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझाया फीफो में, उसको ही लेके चलना है. बट जो रिप्लेस करेंगे वो हम आपको बता देंगे कि लीस्ट रिसेंट यूज में किसको रिप्लेस करना है. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहला पेज नंबर, इनिशियली देखिए हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो एम्प्टी, दैट मींस नो पेजेस आर रिसाइड इन दिस पर्टिकुलर main memory, and this main memory is divided into the 4 frames. देखिए 4 फ्रेम्स में डिवाइड है. और इनिशियली हमारे पास जो ये मेमोरी है वो आपकी फ्री हो रखी है. ठीक है, अब सीपीयू डिमांड कर रहा है इन पेजेस की, राइट. पेज नंबर 7 हो सकता है किसी प्रोसेस का होगा, लाइक सपोज दैट पेज नंबर प्रोसेस P1 का पेज नंबर 7 है जो सीपीयू को चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, है ना. सीपीयू एग्जीक्यूट, सीपीयू आपका रनिंग स्टेट में है, राइट. So on the running state, processes are execution process are reside in this particular CPU. और CPU हमारा क्या है, एज अ रनिंग स्टेट में. दैट मीन्स कहीं ना कहीं वहां पर आपका प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा होगा और प्रोसेस फर्दर डिवाइडेड होते हैं इनटू द नंबर ऑफ पेजेस. जब पेजेस में डिवाइड होते हैं तो आपके CPU डिमांड करता है पेजेस की. क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, सो पेज नंबर 7 उसको चाहिए, बट this page number is not found in this particular main memory, right. so यहां पर क्या हो जाएगा, पेज मिस हो गया, है ना. कौन सा पेज आ गया, 7 को हम लेके आगे जब मिस हुआ. देन फर्दर 0, तो यहां पर भी पेज नंबर 0 इज नॉट प्रेजेंट, मिस हुआ. देन फर्दर 1, क्योंकि 1 भी नहीं है. देन फर्दर 7, 0, 1 एंड 2, यहां पर भी मिस हुआ, ये प्रेजेंट नहीं था. अब उसके बाद कौन सा आ रहा है, 0 इज प्रेजेंट है. सो यहां पर क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा. तो हिट के केस में एज इट इज आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कॉपी हो जाती हैं. देन आपका 3 आया. अब यहां पर है, ठीक है, इस पेज हम रेफरेंस स्ट्रिंग पर है, पेज नंबर 3 पर. अब यहां पर क्या हुआ, 7012 ऑलरेडी प्रेजेंट है, पेज नंबर 3 की डिमांड कर रहा है, बट दिस पेज इज नॉट फाउंड इन दिस पर्टिकुलर मेन मेमोरी. सो हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा.
LRU के केस से। LRU के केस में जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो अभी हमारे पास मेन मेमोरी में कितने स्ट्रिंग्स हैं, कितने पेजेस हैं, 4 हैं, 7 0 1 2, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इन्हीं में से पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसमें से हम किसको रिप्लेस करेंगे, क्वेश्चन यहां पर यह है। तो लीस्ट रिसेंट यूज, जो कम आपका यूज हुआ है, हम उसको रिप्लेस करेंगे। और हम यहां से देखिए भाई, देखिए 0 तो अभी हुआ, 0 दैट इज मोस्ट रिसेंट यूज। फिर कहीं ना कहीं आपका यहां पर थे 0 हुआ, 2 भी हुआ, अभी यूज हुआ, देखो 2 यहाँ रहा, 1 ये रहा, बट कहीं ना कहीं 7 बहुत पहले हुआ था। देखो आप यहां से भी देख सकते हो, ये देखिए यहां पर, ये देखिए ये 7 बहुत पहले यूज हुआ। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 7 को रिप्लेस करेंगे और किसको लेके आएंगे, 3 को। तो सो रिप्लेस 7 को हमने कर दिया 3 से, और हमारी एज इट इज यहां पर फिर से क्या हुआ, ये मिस हो गया, या ठीक है। देन फर्दर 0 यहां पर है, 0 हिट हो गया, जब हिट हुआ तो यहां पर, ठीक है। फर्दर 4 अब यहां पर है इस पॉइंट पर। सो यहां से हम फर्दर इधर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास कितना है, 3 0 1 एंड 2। तो यहां से देखेंगे 0 अभी हुआ है, 3 भी अभी हुआ है, 0 0 है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को या 1 को। देखिए यहां से देखेंगे, इस डायरेक्शन में देखिए, हमारे पास 3 है, 0 है, 1 है और 2 है। तो 4 से देखिए 0 मोस्ट रिसेंट यूज हुआ है, 4 आ रहा है ना, हाँ 0, 3 भी अभी यूज है, 0 ये है, और 2 भी है, कहीं ना कहीं 1। तो हम 1 को रिप्लेस करेंगे और हम किसको लेके आएंगे, 4 को। तो 3 0 4 2, यहां पर भी क्या हुआ, मिस हुआ, ठीक है। देन फर्दर 2 आया, ये हिट हो जाएगा, 3 0 4 2, ठीक है। देन फर्दर 3 आया, ये भी हिट हो गया इसके केस में, तो 3 0 4 2, 0 हिट हुआ, 3 0 4 2, 3 हिट हो गया, 3 0 4 2, 2 हिट हुआ, 3 0 4 2 1। अब यहां पर 1 आया, अब इस डायरेक्शन में देखेंगे हम फिर से, हमारे पास कौन कौन से फिर में, 3 0 4 2, 1 पर हमें इसको रिप्लेस करना है, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 2 अभी हमने यूज करा, 3 भी यूज करा, 0 को भी करा, तो हम 4 को रिप्लेस करेंगे। 3 0 4 को रिप्लेस करके 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका, ये आपका ऐसा हिट चल रहा था और यहाँ पर आपका मिस हो गया। तो 3 0 1 2, 1 को रिप्लेस कर दिया, देन 2 आया, 2 आपका क्या हुआ, हिट हुआ, 3 0 1 2, 0 हिट हो गया, 3 0 1 2, 1 हिट हुआ, 3 0 1 2, 7 अब यहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, तो यहां से फिर फर्दर यहां से देखेंगे, हमारे पास कौन कौन अभी प्रेजेंट है, 3 0 1 2। तो 1 को अभी हमने यूज किया, 0 को भी हमने यूज करा, 1 को हमने यहाँ पर करा, 0 को अभी देखिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, 1 को भी हमने यहाँ, हम 3 को नहीं यूज कर रहे हैं, तो 3 को हम फर्दर हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इससे। तो 7 0 1 2, ये हो गया आपका मिस। देन 0 हिट हुआ, 7 0 1 2, और फर्दर भी आपका बचा कौन सा, 1, ये भी आपका हिट हो गया। ओके, सो हियर कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। तो टोटल नंबर आपके पेज फॉल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर आपका कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. So total number of page fault is 8 and the total number of page hit is the 12. ओके, देख लीजिए भाई, जब टोटल स्ट्रिंग कितनी थी 20 में से पेज फॉल्ट 8 हो गए, तो आपके हिट कितने हो जाएंगे,
12. Is it clear? So I hope these two algorithms, page replacement algorithm is clear. That is first हम जो डिस्कस कर चुके हैं FIFO और दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं LRU. ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट है जो बच रहा है वो हमारा बच रहा है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. तो क्लियर है, ये आप लोगों को क्लियर होगा FIFO के केस में और LRU के केस में. अच्छा, FIFO का एक ड्रॉबैक है, ठीक है, और ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि व्हाट इज बी लेडी एनोमली. क्या पूछा जाता है? बी लेडी एनोमली. इंपॉर्टेंट है. अभी बी लेडी एनोमली क्या है? अब आप देखिए, अगर ये FIFO के केस में है, ओनली ये FIFO के केस में ही है, बट कुछ केसेस में, ठीक है, सारे केसेस में कुछ डिपेंड करता है आपके स्ट्रिंग्स पर, कुछ उसके केसेस में ये काम करता है. ठीक है, तो बी लेडी एनोमली क्या कहती है? When you increase the number of frames, अगर हम नॉर्मल सिचुएशन लेते हैं तो नॉर्मल क्या है? अगर मेरे फ्रेम के साइज को हम बढ़ा दे दें तो पेज फॉल्ट कम हो जाएगा ना, क्योंकि स्पेस मिल जाएगा और पेजेस आ जाएंगे. बट FIFO के केस में ये है, जैसे ही आप फ्रेम का साइज को बढ़ाएंगे, when you increase the number of frames, then it also increase the number of page fault. जबकि पेज फॉल्ट कम होना चाहिए ना, बट इसके केस में क्या है? आपके पेज फॉल्ट बढ़ जाएंगे. सो दिस कंडीशन कॉल्ड एज अ बी लेडी एनोमली. ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट algorithm. So let us take an example, like we have a given strings like 3, 1, 0, 2, 1, 4, 0, 3, right? So optimal में, और and we have a given like frames, we have given frames like 3. कंसेप्ट हमारा वही रहेगा. हम अपने मेन मेमोरी को फर्दर डिवाइड करेंगे 3 फ्रेम्स में, और हमारा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग का साइज पूछा जाए कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो 8 strings, total size of the strings as a 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. So 8. One and 2 and 3. So we have given F1, F2 and F3. LRU के केस में हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, बट ऑप्टिमल के केस में हम इस डायरेक्शन में देखेंगे. ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट ये कहती है हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो लॉन्गर फ्यूचर में उसका यूज हो रहा होगा. अभी मोस्ट रिसेंट का नहीं हो रहा होगा, लॉन्गर में जो यूज हो रहा होगा हम फर्दर उसको रिप्लेस करेंगे. कैसे होता है वो देखते हैं. इनिशियली वी हैव अ मेन मेमोरी divided into these 3 frames. Initially these 3 frames are empty. No as such pages are reside in this particular frames. Okay. अब ये pages आ रहे हैं 3, like 3. This is not present in this particular frame. So क्या हुआ? हमारा मिस हुआ. जब मिस हुआ तो 3. Then further 1 also page fault हुआ, रिसाइड करा दिया. देन 0 फर्दर मिस हुआ, तो यहां पर हुआ. अब 2 पेज आ रहा है, पेज नंबर 2 आ रहा है, बट ऑलरेडी वी हैव अ 3 फ्रेम्स ऑलरेडी फिल्ड. सो विच पेजेस आर रिप्लेस? किसको हम रिप्लेस करेंगे? तो ऑप्टिमल में हम ये देखेंगे कि इसकी फ्यूचर आगे किसकी जरूरत पड़ेगी, लॉन्गर जिसकी हमें नीड होगी हम उसको रिप्लेस करेंगे.
अब देखिए 310, देखिए अब यहां से देखिए स्टार्ट करिए, 1 हमें अभी चाहिए ही चाहिए, 4 अभी नहीं है, 0 हमें अभी चाहिए, और कहीं ना कहीं हमारा 3 की हमें आगे नीड है, 4 तो अभी आया नहीं है, बट 3 की हमें लास्ट में है, तो हम किसको रिप्लेस कर देंगे, 3 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से, क्योंकि 1 को अभी चाहिए, 0 भी कहीं ना कहीं आ रहा है, 4 तो अभी आया ही नहीं, उसको क्या रिप्लेस करेंगे, बट 3 हमें आखिरी में चाहिए, है ना, जब आखिरी में चाहिए तो 3 है, तो 3 की नीड नहीं है, हमने उसको एज अ रिप्लेस कर दिया, तो यहां पर भी क्या हुआ आपका, मिस हुआ। देन फर्दर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मेन मेमोरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा, 210। देन फर्दर 4 आया, अब किसको रिप्लेस करेंगे, अब ये इस पॉइंट पर हम हैं, 0 की हमें नीड है, 0 की हमें नीड है, 3 की अब आगे नीड है, बट अभी आया नहीं है, बट कहीं ना कहीं 1 की तो नीड ही नहीं, तो हम किसको रिप्लेस कर देंगे, 1 को, तो 2, 4 और 0, तो ये भी आपका क्या हुआ, मिस हुआ। देन 0 आ रहा है, तो 2, 4, 0, क्योंकि ऑलरेडी हिट हो गया, बचा 3। अब 3 के केस में अब किसको आप रिप्लेस करेंगे, तो 0 है ही नहीं, अभी तो देखिए 0 हमने किसी को 0 को रिप्लेस नहीं किया, तो हम 0 को भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका एज अ मिस हो गया, तो 2, 4 और 3। So now we have to calculate how many page fault occur, 1, 2, 3, 4 and 5. So total number of page fault is the 5, and the rest of is the 1, 2, 3, 4, 5 and 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 I think, na? 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 6. So 6 page fault. So total number of hit is the 2. एक ये और एक ये, ठीक है? So I hope these 3 algorithms are clear to all of you. So thank you.